رمضان المبارک کا مہینہ اپنے عظمت و کرامتوں اور رحمتوں کی فضاؤں کے ساتھ اپنی آخری مراحل میں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس مہینے میں روزہ، دعاؤں، تواصل، ذکر و عبادات، قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اپنے قلوب و اذہان کو زیادہ سے زیادہ منور کیا۔ رمضان المبارک کے بعد میٹھی عید کی آمد ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جیل میں قید اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہونا زیادہ پرامن لگتا ہے۔ بیورو چیف میاں والی کیسر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق میاں والی میں یوسی پکی شاہ مردان کے سابق ناظم، معروف کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی ملک سرفراز جو سال بھر غریب، نادر اور مستحق خاندانوں کی مالی مدد کرتے رہتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی میاں والی جیل میں قیدی خواتین کو بھی نہ بھولے اور ان کو عیدی کی خوشیوں میں شامل کرتے ہوئے 15 خواتین کے لیے قیمتی کپڑوں کے جوڑے اور ان کے لیے بھجوائے، جو سینٹر صحافی انجمن اسیرہ میاں والی کے جنرل سیکرٹری سید عابد حسین، بیورو چیف آن نیوز دادو خیل سید کیسر عباس اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل علی رضا وڑائش نے اپنے ہاتھوں سے خواتین میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر سید عابد حسین نے آن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حاجی ملک سرفراز غریبوں کی مدد کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ملک صاحب ایک غریب پرور انسان ہیں اور اپنے پاس آنے والے سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ سید عابد حسین نے زبردست الفاظ میں حاجی ملک سرفراز کو خراج تحسین پیش کیا۔ میاں والی جیل میں قیدی خواتین کے لیے عیدی دینے جیسے اقدام کو بھی سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ خبر ہے خیرپور میرٹھ سے۔ بیورو چیف سید ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق خیرپور پولیس کی جانب سے ایک اور کامیاب کارروائی، 3 ملزمان گرفتار، منشیات، اسلحہ اور مسروقہ پانی کا موٹر برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ایس ایس پی خیرپور ظفر اقبال ملک کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ کو ڈی جی محمد اسلم وقاری اور اس کی ٹیم نے کارروائی کر کے 3 ملزمان منصور سولنگی، اعجاز رڈ، شمن چاکرانی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم منصور سولنگی کے قبضے سے مسروقہ پانی کی موٹر اور 410 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ گرفتار ملزم اعجاز رڈ کے قبضے سے 1000 گرام بھانگ برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزم شمن چاکرانی کے قبضے سے بغیر لائسنس ٹی ٹی پسٹل اور گولیاں برآمد ہوئی۔ تینوں کے خلاف الگ الگ مقدمے درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ خبر ہے خیرپور ناتھن شاہ سے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں انتظامیہ کی نہلی کے اور شہر میں بڑھتی ہوئی غیر قانونی تجاوزات کے باعث مین روڈ پر ٹریفک جام ہونا روز کا معمول بن گیا۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے شہریوں کو پیدل چلنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رجب علی سے۔ جی رجب علی، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے جی، بالکل جو ہے نا عید نزدیک آتے ہی خیرپور ناتھن شاہ کے جو ہے نا مین روڈ پر اور جو دیگر جو روڈ ہیں وہ ان پر جو ہے نا غیر قانونی تجاوزات کی وجہ سے یہاں پر جو بھیڑ لگی ہوئی ہے، ٹریفک جام ہونا روز کا جو ہے وہ معمول بن گیا ہے۔ یہاں کے جو مختار کار ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر جو بھی تعلقہ انتظامیہ اور جو ضلع انتظامیہ ہیں ان کی جو ہے عدم توجہ کے باعث یہاں پر عید کی جو خریداری کرنے آئے جو شہری ہیں، وہ بچے ہوں یا بزرگ یا خواتین، جو بھی شہری ہیں، ان کو جو آنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو ہے غیر قانونی تجاوزات ہیں، یہاں پر جو رکشے کھڑے ہوئے ہیں اور جو یہاں پر ٹھیلے مالکان، ریڑے مالکان کی وجہ سے ٹریفک کی جو ہے نا روز کا معمول بن گیا ہے جام ہونا۔ ٹریفک جام ہونے کے باعث یہاں پر شہریوں کا پیدل چلنا بھی جو ہے نا وہ دشوار بن گیا ہے۔ یہاں پر شہریوں کو پیدل چلنا بھی جو ہے نا بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جو اگر دیکھا جائے تو شہر کے مختلف جو چھوٹے موٹی بازاریں ہیں وہاں پر بھی بھیڑ لگی ہے۔ تو یہاں شہریوں کا مطالبہ ہے، یہاں کی تعلقہ انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار کے ان سے یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور جو یہاں پر شہر میں مین روڈ پر جو بڑھتی ہوئی جو یہ ٹریفک جام ہے روز، ان کو جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو ہٹا کر جو شہریوں کو جو ہے سہولیات جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ جی گوہد پور سیالکوٹ کے معروف شخصیت اور سی ای او سلور سی اسپورٹس حاجی میاں محمد سرور اور جوائنٹ سیکرٹری ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن میاں قاسم نے کہا کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، وہیں ہمیں عید کی خوشیاں بھی دے کر جا رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ عید کی خوشیوں میں اپنے ارد گرد مستحق اور یتیم فیملیز کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آئندہ آنے والے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عید آ رہی ہے، آپ سب لوگ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں، اور جیسے آپ خود کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے، ایسے ہی یتیموں کو بھی لے کے دیں اور مسکینوں کو بھی لے کے دیں، اور سب کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک قبول ہو۔
रमज़ान मुबारक का बरकतों वाला महीना अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। ये महीना हमें अमन का दर्स देते हुए आज हमसे जुदा हो रहा है। जहाँ ये जुदा हो रहा है, हमें उदास कर रहा है, वहीं ये हमें ईद की खुशियों का दर्स भी दे रहा है। इसलिए मेरे तमाम पाकिस्तानियों से, ख़ुसूसन आलम इस्लाम से गुजारिश है कि ईद की खुशियों में अपने मसाकीन दोस्त, अजीज़ और अकारिब और गरीब गुरबा को ज़रूर शामिल कीजिएगा। मेरी तरफ से तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को और ख़ुसूसन पाकिस्तान में मुकीम रहने वाले शहरियों को ईद उल फितर की एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। खबर है कैम्बर उकाड़ा कैंट से आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए लोगों ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट का रुख किया हुआ है। हर तरफ ईद की खरीदारी का रश है। बच्चे बड़े ख़वातीन सब मनपसंद खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन ईद पर मुनफरिद और खूबसूरत नज़र आने के लिए फैंसी मलबूसात के साथ मैचिंग जूते, ज्वेलरी और चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। ख़वातीन के साथ बच्चे और मर्द भी ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन का फैंसी मलबूसात के साथ मैचिंग जूता ना हो तो बात नहीं बनती। ख़वातीन की महंगी खरीदारी पर खामदों पर बिल देते वक्त घबराहट तारी होती है, लेकिन खुशी के आगे सब कुछ मानद पड़ जाता है। बच्चे अपनी पसंद और मलबूसात जूते मिलने पर खुशी से फूले नहीं समाते। ईद की तैयारी के लिए मार्केटों में गहमा गहमी अरूज पर है, क्योंकि ईद है ही खुशियों का नाम। इस दिन को खूब से खूब मनाने और सजने संवरने के लिए शहरी शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए मसरूफ़ हैं। आपको लिए चलते हैं खुशाब की जानिब। खुशाब में यूटिलिटी स्टोर पर आवाम का बेतहाशा रश और हिम्मत ना हारने वाले अमले की रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में रोज़े रख कर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले इस अमले को क्या परेशानी और तकालीफ हैं, जो सुबह सहरी के औकात से लेकर सहरी तक ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, मज़ीद जानते हैं उनसे। जी अब्दुल रहमान, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खुशाब के गुलस्तान बाबर रोड पर। यहाँ यूटिलिटी स्टोर के जो यहाँ रश देखा जा रहा है, यूँ ही ईद नज़दीक आ रही है, आवाम का जम गफ़ीर है। यहाँ बेनज़मी है, यहाँ औरतें बच्चे इस तरह मिन्नतें कर कर के ये लोग लेने नहीं बना रहे हैं, खुद ही अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। यहाँ जो डिप्टी पे बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी आजकल डिप्टी कहाँ से कहाँ तक हो, सुबह कितने बजे आते हैं, रात को कितने बजे जाते हैं, मज़ीद इनसे जाते हैं। जी सर, आपका नाम? नजमुल हसन। अच्छा, कितने बजे ड्यूटी शुरू होती है? सर होती है हमारी सुबह 10 बजे शुरू होती है और हम जो है ना तकरीबन 3-4 बजे तक बैठते हैं रात के 3-4 बजे। तो अभी ये जो आवाम का ये जो जम गफ़ीर है, इसमें आपको किन चीज़ की मुश्किलात है, ये परेशानी है? सर बहुत रश ज़्यादा होता है, बंदे ज़्यादा होते हैं और मतलब लेने नहीं बनाते हैं और मतलब ज़्यादा मुश्किलात। कुछ बंदे ऐसे आ जाते हैं कि मतलब वो ज़बरदस्ती अंदर इन हो जाते हैं। उसकी वजह से ना जो आवाम मतलब ज़्यादा बनाते हैं, मसला बनाते हैं कि ये अंदर क्यों जा रहे हैं, ये इस तरह का बनाते हैं। कुछ बंदे ज़बरदस्ती अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। तो पुलिस वगैरह आपको मतलब सपोर्ट नहीं कर रही, या कोई अभी तक कोई मतलब हमारे महकमे ने को कहा ही नहीं है इस तरह। जी इनका यही कहना है कि जिस तरह हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है, इसी तरह आवाम को भी चाहिए कि हमारे साथ तावन करे और बदनज़मी न बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल रहमान, ऑन न्यूज़ खुशाब। एक और ख़बर है खुशाब से। खुशाब के रमज़ान बाज़ार की, जहाँ पर मुस्लिम लीगी शेरनुमान कुरैशी ने कुरैशी बरादरान की तरफ से अपने कायद मियाँ हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और अपने डिस्ट्रिक्ट खुशाब की आवाम को खुसूसी रिलीफ आवाम दोस्त पैकेज दिया और चीनी 65 रुपये फ़ी किलो दी। खुशाब की आवाम ने मुस्लिम लीगी शेरों का शुक्रिया अदा किया और मुस्लिम लीग को दुआएँ दी। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, मज़ीद जान लेते हैं उनसे। जी अब्दुल रहमान, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। भाई नुमान कुरैशी साहब की तरफ जी, नुमान कुरैशी साहब की तरफ जी, कुरैशी ब्रदर वाले जी, उन्हें 65 रुपये तू ले जाकर पैसे दे। आ चीनी जड़ी ने हमदा शहबाज शरीफ पूरी जड़े जिन्हें हलफ लिया कल, उन्होंने मेहरबानी नाल अवाम को अच्छा रिलीफ दिता गया। 65 रुपये चीनी जनाब दे रहे ना रमज़ान बाजार वाले। अवाम बड़ी मशकूर है इन्हों की और तय हद तक मशकूर है इन्हों की। अल्लाह पाक रात चुगनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, माशाअल्लाह।
और इधर समुंदरी थाना मरीदवाला के इलाका चक नंबर 485 में मामूली तलख कलामी पर लड़ाई में तब्दील हो गई। दौरान लड़ाई दो अफराद ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े की फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। फुटेज में नौजवान पर तशद्दुद करते वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है। थाना मरीदवाला के इलाका चक नंबर 485 गावबे में मामूली तलख कलामी पर लड़ाई हो गई। दो अफराद ने नौजवान सुहेल को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में नौजवान सुहेल पर तशद्दुद होते वाज़िह देखा जा सकता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुहेल नदीम और मुदस्सिर के दरमियान मामूली तलख कलामी हुई, जो लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई। दौरान लड़ाई नदीम और मुदस्सिर ने सुहेल को तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। खबर शामिल करते हैं जहलम से। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मिर्ज़ा राशिद नदीम जराल साबिक चेयरमैन बल्दिया जहलम ने अफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें खसूसी शिरकत मारूफ बिजनेसमैन मिर्ज़ा अकील जराल, आफ्ताब जराल, भोला जराल, बॉबी जराल, बिजनेसमैन फ़खर सराय आलमगीर, राजा नईम नवाज़, मारूफ सियासी शख्सियात चौधरी फ़रख अल्ताफ़ MNA, राजा मतलूब मेहदी चौधरी, सईद इकबाल साबिक MPA, दीगर सियासी समाजी कारोबारी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मिर्ज़ा राशिद नदीम जराल साबिक चेयरमैन बल्दिया जहलम ने अफ्तार डिनर में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। नहरी पानी बंद कर दिया गया। महकमा अनहार ने शोरकोट जंगल को सैराब करने वाली नहर को बंद कर दिया। वाहिद बसीरा नहर जंगल के 10,000 एकड़ से ज़ायद रकबे को सैराब करती थी। जी बिल्कुल, शोरकोट महकमा अनहार ने जंगल को सैराब करने वाली नहर को बंद कर दिया। नहर के अमले ने नामालूम वजूहात की बिना पर पानी बंद किया। पानी की बंदिश से सैकड़ों एकड़ पर लगी पौधों की नई फसल तबाह होने का खदशा। नए पौधों को बर वक्त पानी ना मिला तो महकमा जंगलात को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। महकमा जंगलात ज़राए झुलस देने वाली गर्मी में नहर की बंदिश से जंगली हयात भी इंतहाई मुतासिर। बड़ी नहरों में पानी की किल्लत के बायस बसीरा नहर को बंद कर दिया गया। SDO महकमा नहर का मुवक्कफ पानी की किल्लत पूरी होने पर नहर को चलाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग नजीबुल रहमान बगवी की हिदायत पर ईद उल फितर का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। ज़िले भर में ईद उल फितर के मौके पर 180 मसाजिद, 23 अमाम बारगाह, 19 खुले मकामात और 18 अहमदी इबादत गाहों पर 750 से ज़ायद पुलिस अफसरान मुलाजमान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एलिट कमांडोज बतौर QRF ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उसके साथ साथ 150 पुलिस कौमी रज़ाकारान और उसके अलावा प्राइवेट गनमैन भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। नमाजियों की चेकिंग के लिए अहम मकामात पर वॉक थ्रो गेट और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। ईद उल फितर के मौके पर ज़िले भर में 45 मकामात पर पुलिस नाकाबंदी पॉइंट्स लगाए गए ताकि ईद के अयाम में ड्राइम की वारदातों की रोकथाम और अवामुल नास की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उसके अलावा कब्रस्तानों में लोगों के आने जाने की वजह से खसूसी ड्यूटी लगाई गई। और इधर लालू रैंक का यूटिलिटी स्टोर गरीब आवाम के लिए ना होने के बराबर। यूटिलिटी स्टोर पे आने वाले ईद पैकेज का सामान गरीब लोगों की बजाय इलाके के बासर सियासी वडेरों और दुकानदारों को बेचा जा रहा है। गरीब लोगों को रिलीफ देने के लिए सस्ते रेट वाला आया हुआ सामान गदा गाड़ियों के जरिए दुकानदारों और शहर के सियासी लोगों के अड्डों पर पहुंचाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद शहर के सियासी समाजी बासर लोगों में हलचल मच गई। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लालू रैंक यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज को हटाया जाए और किसी ईमानदार इंसान को इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। दूसरी सूरत में सख्त एहतजाज किया जाएगा। खबर है गुजरात से, जहां पर ज़िला गुजरात के कस्बा मंगवाल में गैस सिलेंडर रीफिलिंग करने वाले की वजह से सिलेंडर फटने से 30 दुकानें जलकर राख हो गई। तफसीलात बता रहे हैं गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। मौज़ा मंगवाल गरबी के मेन बाजार पर वाक़या गैस रीफिलिंग दुकान में सिलेंडर में गैस भरते हुए धमाके से फौरी तौर पर आग लग गई। आग ने आनन फानन दर्जनों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत से दुकान में पड़े हुए दीगर सिलेंडर भी फटने लगे। इर्द गिर्द के रिहायशी मकीनों ने फौरी तौर पर नकले मकानी अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश। रेस्क्यू की 2 गाड़ियां मौका पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश। हाल में ये जो सानिया रूनमा हुआ है, इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं और SHO थाना और SQ वाले और जिस तरह मंगवाल की आवाम ने बर वक्त पहुँच के जानी नुकसान होने से बचाया, ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बाकी मेरी मंगवाल की आवाम से, मंगवाल के साहब हैसियत लोगों से और जितनी भी वेलफेयर हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो सब आगे आएँ और अपने ताजर भाइयों का साथ दें, क्योंकि जिस तरह इन लोगों का नुकसान हुआ है, इन लोगों को स्टैंड करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह हम पहले भी अपने ताजर भाइयों के साथ थे, आज भी हम अपने ताजर भाइयों के साथ खड़े हैं।
जिस तरह भी हो सका मुमकिन हुआ अपनी जेब से भी मदद करेंगे और अपना साहब हैसियत जितने लोग हैं उनके आगे भी झोली फैलाएंगे कि अपने ताजर भाइयों को स्टैंड करने के लिए इंशाल्लाह हम अपने ताजर भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में अपने ताजर भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही इंशाल्लाह इनको परेशान होने देंगे। हम पहले भी अपने ताजर भाइयों के साथ खड़े थे और आज भी इंशाल्लाह अपने ताजर भाइयों के साथ खड़े हैं और चौधरी परवेज लाई साहब और मोनिस लाई साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने रेस्क्यू का क़याम किया और आज मंगोवाल में बहुत बड़ा सानिया होने से बच गया, क्योंकि रेस्क्यू वाले पूरे टाइम पे पहुंचकर उन्हें आग पे काबू पाया है। अगर ये रेस्क्यू वाले ना होते तो यकीन करो कि मंगोवाल में बहुत बड़ा नुकसान होना था। तो मैं आखिर ते मंगोवाल पुलिस चौकी पुलिस थाना मंगोवाल चौधरी अख्तर गुजर साहब दा मीडिया टीम दा मंगोवाल दा रेस्क्यू 1122 दा पूरे मंगोवाल दे आवाम दा शुक्रिया अदा करना जिन्हें बर वक्त ते आके इस अग दे उत्ते काबू पा के ते कोई जानी नुकसान तो जड़ा बचाया जा सके। साडे कैमरा टीम के साथ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी, आन न्यूज़ टीवी, गुजरात। कामों की सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश धर लिए। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी पुलिस के SHO लुकमान गोंदल की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलमान ईद पर सेल के लिए मंशियात को ले जा रहे थे कि पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके कब्जे से तकरीबन 5880 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। CPO गुजरांवाला कैप्टन सईद हमाद आबिद ने थाना सिटी पुलिस के SHO लुकमान गोंदल और उनकी पूरी टीम के लिए नकद इनामात और तारीफी इंसदाद देने का ऐलान किया। सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर पुलिस का गुमशुदा बच्चों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। SHO थाना हैदराबाद SI राना मोहम्मद अशरफ मुआ टीम ने गुमशुदा बच्चे मोहम्मद शहबाज वल्द अब्दुल गफूर कोम्बल और सकना डेरा इस्माइल खान को तलाश करके वारसान के हवाले कर दिया। वारसान ने भक्कर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DIG लाड़काना मुजफ्फर नवाज शेख और SSP लाड़काना सरफराज नवाज ने लाड़काना ज़िले के अंदर क़याम अमन के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले शहदाए लाड़काना पुलिस की 207 बहादुर फैमिलीज़ में मिठाइयाँ और चेक बतौर ईदी तकसीम किए। DIGP और SSP लाड़काना बज़ात खुद शहदा की बहादुर फैमिलीज़ और बच्चों से मिले खैरियत मालूम करते हुए दुखो सुख दरियाफ्त की और शहदा की मग़फ़रत के लिए दुआएं की। DIGP और SSP लाड़काना ने ज़िले के तमाम DSP साहबान और SHOs को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो तमाम शहीद पुलिस अफसर और एहलकारों के अहल खाना के साथ हर वक्त राब्ते में हैं। शहदा के अहल खाना की हर मुमकिन और जायज़ मदद करेंगे और उनके साथ पेश आने वाले किसी भी मसले को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। रुख करते हैं आरिफवाला का। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन नसीबुल्लाह खान की तरफ से ईद के पुरमसरत मौके पर ज़िला पाकपतन की आवाम के नाम खसूसी पैगाम। अवामुल नास को चाहिए कि ईद उल फितर पर पुरअमन तरीके से मनाएं। शरपसंदी और हल्टरबाजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हवाई फायरिंग और पतंगबाजी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन विलिंग जैसी जानलेवा सरगर्मी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन को चाहिए कि वह अपने बच्चों को वन विलिंग और हवाई फायरिंग जैसी सरगर्मियों से मना करें। किसी भी किस्म की गैर कानूनी और समाज दुश्मन सरगर्मी से आनी हाथों निपटा जाएगा। ईद के पुरमसरत मौके को खुशी से गुजारें और लोगों में भी खुशियाँ बांटें। अपने इर्द गिर्द गैर कानूनी सरगर्मियों और जराइम में मुलव्वस लोगों पर नज़र रखें और फौरी पुलिस को मुताला करें। मेरी तरफ से पाकपतन शहरियों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। इस ईद उल फितर के मौके पर ज़िला भर में मसाजिद और ईदगाहों समेत कुल 900 मकामात पर ईद की नमाज अदा होनी है और उसका मरबूत सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है। ज़िला भर में पाकपतन पुलिस के 640 के करीब अफसरान और जवान आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल पेट्रोलिंग और स्पेशल नकाजात का प्लान भी जारी किया गया है। मेरी तरफ से अवाम और नास को अपील की जाती है कि ईद के पुरमसरत मौके पर किसी भी गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मी, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग से परहेज़ करें और दूसरों को भी इससे मना करें, इज्तनाब का दर्स दें और ताकि हम मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का सबूत दे सकें और अमन अमान से अपनी खुशी के साथ ईद बसर कर सकें। पाकपतन की पुलिस इसमें अपनी खुशी समझती है
کہ آپ کی عید اپنے گھر والوں کے ساتھ بحفاظت گزرے، اور ہمیں اس سے فخر ہے، اس پہ فخر ہے ہمیں کہ ہمارے جوان آپ کی خوشی کے لیے دن رات اپنی ڈیوٹی پہ اپنے گھر والوں سے دور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ عید منا سکیں۔ بہت شکریہ۔